Hello everyone, welcome to CGP Mentors platform. So as everyone knows that finally RBI Grade B 2026 notification is out, right? And जैसे कि अब आपका एग्जाम जून में होने वाला है, right? So I just want to say one thing everyone. बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने काफी टाइम से किसने थोड़ी सी प्रिपरेशन करी है, किसी ने ज्यादा करी है, राइट? बट द थिंग इज एवरीवन, जो अब वाले जो 40 डेज है ना, इट इज एक्चुअली गोइंग टू डिसाइड हु इज गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम और हु इज नॉट गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम. Okay, so I have created 40 days plan for you all so that now, because अब हमें ये पता होना चाहिए कि ठीक है अब हमें सिर्फ ये पढ़ना है, यहाँ से इतना पढ़ना होता है, इतने क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करने, कहाँ से करना है, ताकि हमें क्लैरिटी रहे, हमें पता हो कि ठीक है ये सारी चीजें करनी है. So now I'm going to put efforts in the right direction with the help of this particular plan. अब क्या होता है जब हमारे पास, जैसे मैं होती, अगर मेरे पास कोई प्लान नहीं होता तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती, मुझे समझ नहीं आता कि ठीक है अभी आज क्या करूं, कल क्या करूं, हमेशा एक कंफ्यूजन ही रहेगा मन में, राइट? So to reduce that confusion, to reduce the burden on you guys, I have created this 40 days plan for you all. And now I just want to say, पहले लोग जो भी प्लान फॉलो कर रहे थे आप वही फॉलो करते रहिए, बट यस अभी कोई बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी डायरेक्शनलेस प्रिपरेशन कर रहे थे. सो प्लीज everyone streamline your preparation with the help of this 40 days study plan. Okay, चलिए let's move ahead. बहुत बातें नहीं करेंगे because I know now your time is actually very precious, right everyone? Now your time is very precious. So put your efforts in the right direction, and that right direction will definitely help you to clear this exam. Okay, and trust me, these 40 days are actually going to decide कि किसका exam clear होने वाला है. Okay, so the key points are, so first, yes, you can become RBI Grade B officer in 2026. कोई कुछ भी बोले, मैं आपको बता रही हूँ, you can clear this exam, you can become RBI Grade B officer in 2026 only, but yes, बस एक शर्त है, put efforts in the right direction. That's it. Put efforts in the right direction everyone. Now the next thing is focus on implementation, because बहुत बातें करने से, सिर्फ प्लान करने से कुछ नहीं होता है. If you are not implementing anything, then सच में उसका कोई फायदा नहीं होता है everyone. Okay, you can become RBI Grade B officer in 2026, but शर्त ये है कि that you have to implement the things that I'm going to mention in the entire video. Okay, and the thing is that limited coverage, so your focus should be on limited coverage. Your focus should never be on कि ठीक है मैं यहाँ से भी पढ़ लूँ, ये भी सोर्स पढ़ लूँ, वो भी सोर्स पढ़ लूँ, नहीं. If you really want to become RBI Grade B officer in 2026 everyone, then I just want to say one thing, that limited coverage will give you the maximum result. Trust me, सबको पता है 20:80 वाला रूल, जिसमें बोलते हैं कि your 20% of your efforts are going to give you the maximum results. So focus on the 20% of the content that is actually going to help you to that will actually help you to score 80% of the marks. Okay, then do not ignore English everyone. Try to maximize this particular section. This is your low hanging fruit. मैं बोल के सबको थक चुकी हूँ, बट मुझे पता है बहुत सारे बच्चे अभी भी नहीं सुनते हैं. मैं आपको बार में दोबारा से ही बोलूंगी that try to score 20+ marks in the English section. ठीक है, इंग्लिश के लिए कुछ नहीं करना होता है, just give 3 to 4 sectional mock tests. Just give 3 to 4 sectional mock tests in every week. ठीक है, in every week just give 3 to 4 sectional mock of English, and trust me everyone, English का strategy should evolve around your mock test only. ठीक है, because we don't have बहुत सारा time to put on other things, right? So जब बहुत सारा time नहीं होता तो obviously अब हम English के लिए हम अलग से time नहीं निकाल सकते, but yes हम अलग से सिर्फ 20 से 25 मिनट तो निकाल सकते हैं. वो भी मैं रोज नहीं बोल रही हूँ, वो भी मैं बोल रही हूँ alternative days पे करने की कोशिश करो. Okay, so I just want to say, do not ignore English everyone, do not ignore it, because अभी वैकेंसी कम आई है तो आपको पता ही है, जब वैकेंसी कम आती है तो क्या होता है everyone, जब वैकेंसी कम आती है तो हम सबको ये पता होता है हमारा जो ओवरऑल कट ऑफ होता है वो भी इंक्रीज होता है. तो ओवरऑल कट ऑफ इंक्रीज अगर होगा तो हमें भी तो अपने मार्क्स बढ़ाने हैं ना, तो हम अपने मार्क्स कहाँ से बढ़ाएंगे? विद हेल्प ऑफ इंग्लिश ओनली एवरीवन. सो ट्राई टू स्कोर 20+ इन द इंग्लिश सेक्शन. ओके, देन द नेक्स्ट थिंग, ये तो मैं हर बार ही बोलती ही हूँ, दोबारा से बोलना चाहूंगी, प्रैक्टिस एंड रिवीजन एवरीवन. Practice and revision, because without practice, without revision, it's very difficult, right? Yes, you can become RBI Grade B officer in 2026. उसके लिए you have to focus on limited topics, you have to focus on implementation, and you have to focus on practice and revision everyone. And yes, उसके साथ इंग्लिश को बिल्कुल नहीं भूलना है. So practice and revision is the key everyone. I have mentioned the number of questions that you need to do. So मैं कहूँगी प्लीज जितना बोला है उतना कर लेना. ठीक है, बहुत सोच समझ के प्लान बनाया गया है. मैंने अपने आप को सोचा कि अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं कैसे पढ़ती. ठीक है, देन रिवीजन बिकॉज GA में इफ यू वांट टू स्कोर 35+ मार्क्स ना एवरीवन, मंथ्स तो ठीक है मैं आपको बताऊंगी, बट उसके साथ अगर आपने रिवीजन नहीं किया देन वो आपका जो GA में मार्क्स होगा ना वो ड्रास्टिकली नहीं इंप्रूव हो पाएगा. सो इफ यू रियली वांट टू स्कोर रियली गुड मार्क्स इन GA एवरीवन, देन यू हैव टू डू मल्टीपल रिवीजन्स. ओके, देन फॉर GA की अगर मंथ्स की बात करें, सो यू हैव टू डू न्यूज़पेपर CA, स्टार्ट फ्रॉम मिड मार्च एवरीवन.
न्यूज़पेपर सीए के लिए स्टार्ट फ्रॉम मिड मार्च, पीआईबी के लिए स्टार्ट फ्रॉम मार्च मंथ एंड सर्कुलर्स के लिए स्टार्ट फ्रॉम फेब्रुअरी मंथ. नाउ इफ यू हैव टाइम देन गो टू लाइक फॉर सर्कुलर्स यू कैन रीड ऑफ you can read the month or you can read the circular from January month also. Now for PIB if you have time then February से भी कर सकते हो, but in this plan I have included from here only because now we have less time, right everyone. So and yes न्यूज़पेपर सीए में देखो, न्यूज़पेपर सीए में दो चीजें आती हैं आपकी, एक बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स जो आपको सपना मैम पढ़ाते हैं, देन आता है आपका जनरल जीए जो आपको अलका मैम पढ़ाते हैं. Okay, so 2 videos are available on our channel and banking finance current affairs is very important for your exam, so do not ignore it. Okay, so these are the 3 things, these are the months that you need to follow for general awareness section. And yes, in the entire video I have added the targets as well because मुझे पता है वीडियो बना लो, स्टडी प्लान बना लो, उसमें टारगेट्स नहीं है तो कोई फायदा नहीं होता because implementation करने में थोड़ा सा आसान रहता है. Right everyone, and the last thing ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ, that believe in yourself everyone, that you need to trust in your abilities. You know, you all have that ability everyone to clear this exam, but बस पता क्या होता है, एग्जाम किनका क्लियर होता है किनका नहीं होता है. एग्जाम उन बच्चों को क्लियर हो जाता है जो कम समय में भी ना सही से एफर्ट डाल लेते हैं, सही डायरेक्शन में उनका क्लियर हो जाता है, ठीक है. और किनका नहीं होता है, जो क्या करते हैं हमेशा डरते रहते हैं, उनको लगता है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो हमेशा एक सेल्फ डाउट में जी रहे होते हैं और उनको हमेशा रहता है कि पता नहीं इतना से दिन है क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे में तो मेरे पे तो कैपेबिलिटी नहीं है, मुझे तो ये नहीं आता, मुझे तो ये नहीं आता. दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन द थिंग्स जो नहीं आता है, ठीक है. एंड दे आर नॉट फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन एंड दे आर नॉट फोकसिंग ऑन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है. सो ये बिलीव इन योरसेल्फ में क्यों बोल रही हूँ आपको, जब आपके हमें भरोसा होगा ना कि यार मैं कर लूंगी, सो उसमें पता क्या होता है, फिर उसमें हमें कॉन्फिडेंस आता है. जब वो कॉन्फिडेंस आता है तो जो हमारा फोकस है ना, इट शिफ्ट्स फ्रॉम देयर टू हियर. हाउ, बिकॉज नाउ जब आपको कॉन्फिडेंस होगा तो आपको लगेगा ठीक है ना यार, ये नहीं आता तो क्या हो गया, मैं कर लूंगी, मैं सीख लूंगी, आई कैन डू इट, आई कैन मैनेज इट, आई कैन पुट 100% ऑफ माई एफर्ट्स. बट येस जब हमें भरोसा नहीं होता ना तो हम उसी लूप में घूमते रह जाते हैं कि यार मुझे तो ये भी नहीं आता, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, राइट. सो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग एवरीवन, ट्रस्ट योर एबिलिटीज, you have that ability and trust me, universe is going to work in your favor only if you're gonna put efforts, right. If you're gonna trust, if you guys are going to trust yourself, then universe will be like कि ठीक है यार इसको इतना भरोसा है तो उसको देते हैं ना जो उसको चाहिए. ओके, सो ट्रस्ट. एंड हमेशा बोलूंगी, हमेशा ना एक मैजिक पे भरोसा करोगे, लाइफ में मैजिक होता है एवरीवन, बहुत लोगों की लाइफ में हो भी रहा है. सो ट्रस्ट एवरीवन, ट्रस्ट की मैजिक आपकी ही लाइफ में हो रहा है एंड एवरीथिंग इज वर्किंग इन योर फेवर ओनली. एंड हैव ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज, देन सी द मैजिक एवरीवन. मैजिक होगा, जरूर होगा, सब बहुत अच्छा होगा. बस यस उसके लिए जैसे बताया जा रहा है सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई कर लो. ओके एवरीवन, चलो बहुत बातें करी, नाउ विल मूव अहेड. ओके, सो फॉर क्वांट, बिकॉज मेरे से मैंने बहुत बार ही बता रखा है बट स्टिल बहुत सारे बच्चे होंगे जो नए होंगे, सो उनको मैं बताना चाहूंगी क्वांट के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हमारे ये 4 चैप्टर्स, ठीक है. डेटा इंटरप्रिटेशन से यू गाइज आर गोइंग टू हैव 15 क्वेश्चंस, यानी कि 3 DI सेट्स आते हैं हमारे जिसमें आपके 15 क्वेश्चंस होते हैं. देन नंबर सीरीज से एवरी ईयर वी आर हैविंग 3 to 5 क्वेश्चंस. देन क्वाड्रेटिक से एवरी ईयर 3 क्वेश्चंस आर देयर एक्सेप्ट इन 2024, एक्सेप्ट इन, जस्ट वेट एवरीवन, सो एक्सेप्ट इन 2024 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हर साल क्वेश्चन आया है. देन नंबर सिस्टम से क्या होता है, क्वेश्चन तो एक दो ही आते हैं, बट जो नंबर सिस्टम जो कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना, जैसे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, दोस कॉन्सेप्ट्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर सीरीज के हाई लेवल वाले क्वेश्चंस में. ओके, सो दैट्स व्हाई आई वांट यू गाइज टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स, बिकॉज इतना करते हैं तो हमारे देखो 10 नंबर तो आराम से आ ही सकते हैं. बिकॉज अगर आप 3 DI में से 1 DI भी सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन आप वहां से सॉल्व करते हैं, 3 नंबर सीरीज थे, 3 में से 3 नहीं भी बने, स्टिल यू आर एबल टू सॉल्व 2 नंबर सीरीज, 1 नंबर सिस्टम, 3 क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो आपका 10 क्वेश्चन तो बनते ही हैं, राइट. बट मेरा ये मानना है कि हम सेफ साइड क्यों ना जाए, राइट. सो आई जस्ट वांट यू गाइस, इतना करने के बाद पिक 2 to 3 योर फेवरेट अरिथमेटिक टॉपिक, ठीक है. मेरा सजेशन, मेरा फेवरेट रहेगा पार्टनरशिप एंड टाइम एंड वर्क, बिकॉज मुझे पता है इसमें ज्यादा कुछ सीखना नहीं है, एक बार सीख लिया बस, क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, राइट. दिस इज माय फेवरेट. अगेन मैंने पूरे प्लान में इन 2 चीजों को इंक्लूड किया है. नाउ आई विल सजेस्ट कि अगर आपको ये टॉपिक नहीं करने तो दूसरे वो करना जो आपको पसंद है, सिंपल सा लॉजिक है. ओके, नाउ फॉर रीजनिंग एवरीवन, सी रीजनिंग में योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी to cover all the miscellaneous topics, ठीक है. miscellaneous topics of reasoning involves syllogs, inequality, alphanumeric, input output, coding, direction sense, blood relation, order and ranking. These are the 8 miscellaneous topics everyone. Now these topics अब बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 15 से 20 क्वेश्चन ना हमारे इसी से आ रहे हैं, ज्यादा भी आते हैं कभी कभी, मैं फिर भी लीस्ट नंबर लेके चल रही हूँ. 15 से 15 से 15 to 20 questions are going to come from this particular section only. So this should be your number 1 priority everyone. Whenever you are going to solve mock और कभी भी आप टेस्ट देंगे, कुछ भी करेंगे, एग्जाम में भी सबसे पहले हमें मिसलेनियस क्वेश्चंस उठाने होते हैं, ठीक है. This should be your first priority everyone.
ओके, नाउ फॉर क्रिटिकल रीजनिंग, नाउ सी क्रिटिकल रीजनिंग वेरी वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग बहुत बेकार हो जाते हैं। अब जो हम बेकार हो जाते हैं तो हमसे क्या होता है, हम नेगेटिव ज्यादा करते हैं, राइट? सो व्हाट आई वांट फॉर क्रिटिकल रीजनिंग, ट्राई टू गिव 5 to 6 सेक्शनल वॉक ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है? जो भी बैंकिंग एग्जाम के होते हैं ना, वहीं जाके सॉल्व कर दो, कोई टेंशन नहीं है, वो वाले सॉल्व करो एंड देन सी कि अगर आपका मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप पॉजिटिव साइड रह रहे हो, यानी कि आपकी एक्यूरेसी 70% के अराउंड है, देन यू कैन रिलाई ऑन दिस टॉपिक, देन यू कैन टेक रिस्क इन द एग्जाम फॉर ऑन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। बट येस, इफ यू आर हैविंग दिस पैटर्न कि मैंने 5 से 6 मॉक दिए, हर जगह ना मैं नेगेटिव में हूँ, यानी कि मेरा जो एक्यूरेसी है ना इट इज लेस देन लाइक 50%, देन आई विल से दैट डू नॉट प्ले विद दिस टॉपिक। वाई एवरीवन? बिकॉज यार कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि जब मुझे पता है कि ये टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं इसमें क्यों हाथ पैर मारने जाऊंगी? एंड नाउ वी डोंट हैव इतना सारा टाइम कि हम इसमें ज़्यादा दिमाग मार पाए, ठीक है? सो इसके बदले में क्रिटिकल रीजनिंग के लिए मैंने बताया, आप मॉक्स देंगे, उसके बाद देखेंगे इफ इट इज योर स्ट्रेंथ देन यू कैन टेक रिस्क, इफ इट इज नॉट देन यू कैन इग्नोर दिस टॉपिक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स। नाउ सी, पजल सिटिंग अरेंजमेंट्स हर साल आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है? 30 क्वेश्चन समझ रहे हैं, यानी कि 6 पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट यू विल सी इन योर एग्जाम, राइट? बट द थिंग इज, अब आप बोलोगे मैम इतना इंपॉर्टेंट है तो हम पहले इसको प्रायोरिटी क्यों नहीं दे रहे, पहले इसको क्यों दे रहे हैं? इसको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन होते हैं वो डूएबल होते हैं, इसको इसलिए सेकंड प्रायोरिटी पे हम रखेंगे। वाई एवरीवन? बिकॉज अगर एग्जाम मुश्किल आ गया, जैसे अगर हम 2023, 22, 21 की बात करें, तो वहां पे पजल बच्चों से एक पजल हिलता भी नहीं था, यानी कि हम बना ही नहीं पाते थे एक भी पजल। अगर एग्जाम मुश्किल आया तो जब कोई बच्चा पजल नहीं करेगा तो हम भी करके नहीं आएंगे। अगर एग्जाम लेकिन आसान आता है ना एवरीवन, क्योंकि हर बच्चा 1 से 2 पजल करके आएगा। सो नाउ दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी, या दिस शुड बी योर माइंडसेट कि ठीक है, अगर एग्जाम मुश्किल आया तो कोई नहीं बनाएगा तो मैं भी नहीं बनाऊंगा, बट अगर एग्जाम आसान आएगा तो सब 1-2 पजल बनाएंगे, तो मुझे भी 2 पजल बना के आने हैं। यू कैन इजिली सॉल्व 2 पजल अगर एग्जाम इजी आता है, जैसे कि लास्ट ईयर आया था, ठीक है? सो व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू, आई जस्ट वांट यू गाइस टू प्रैक्टिस बेसिक टू मॉडरेट लेवल ऑफ पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट्स, सो दैट अगर एग्जाम आसान आता है तो आप कम से कम 2 पजल आराम से एग्जाम में सॉल्व करके आए, ओके? बट जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कि पहले मैं रीजनिंग के क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, देन पजल में जाऊंगा, ठीक है? चलो, नाउ लेट्स इंग्लिश के लिए मैंने आपको बता दिया ना एवरीवन, इंग्लिश के लिए मैंने बताया कि आपको मॉक्स देने हैं, सेक्शनल मॉक देने हैं, जीए के लिए मैंने आपको नंबर ऑफ मंथ्स बता दी हैं, राइट? नाउ लेट्स मूव अहेड। अब देखो फेज 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है? फेज 2 के लिए क्या है, देखो फेज 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर एग्जाम, बिकॉज जो मार्क्स होते हैं ना आपके फेज 2 के, इट इज एक्चुअली गोइंग टू डिटरमाइन वेदर यू आर गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम और नॉट, right? So for phase 2, I don't want you guys to get involved in for phase 2 right now a lot, but yes, what I want you guys to do, let's see, I'm going to tell you a few themes. I'm going to tell you few themes. Themes मतलब होता है everyone topics, ठीक है? Themes मतलब होता है topics, ठीक है? I'm going to tell you a few themes or the topics that you guys need to read for the next 20 days, ठीक है? ज़्यादा नहीं है, 15 थीम्स, 15 टॉपिक हैं, बस आपको क्या करना है, ये टॉपिक आपको पढ़ना है, खुद से नहीं पढ़ना, चैट जीपीटी को बोलो मेरे लिए कंटेंट बनाओ विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव एंगल से चीजें पढ़नी है, ठीक है? चैट जीपीटी आपको 10 मिनट में कंटेंट बना के देगा, 20 मिनट आपको वो पढ़ना होगा, तो समझो आपका 30 से 35 मिनट में एक टॉपिक तैयार हो जाएगा, ओके एवरीवन? सो क्या करना है, आई एम गोइंग टू टेल यू द थीम्स, द टॉपिक्स दैट यू नीड टू डू फॉर द नेक्स्ट 20 डेज, ठीक है? सो ये प्लान आपको खुद से ही फॉलो करना है। अब आपको देखना है, जब आपको दिन में एकदम थक जाओ, लगे कि अभी दिमाग ज्यादा काम नहीं करना है, सो पिक वन टॉपिक, गिव इट टू चैट जीपीटी एंड एक अच्छा सा कमांड क्रिएट करो, उसको बोलो किसी क्या बोलते हैं, ये टॉपिक मुझे आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम के डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रिपेयर करना है, डू एट द थिंग्स दैट आर रेलिवेंट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, डू एट द करंट डेटा फैक्ट्स ऑल्सो, ठीक है? उसके डेटा फैक्ट पे ऐसे कम भरोसा करना, बट हाँ उसमें जो कंटेंट देगा ना कि ठीक है क्या चैलेंजेस है, क्या प्रॉब्लम्स है, प्लस क्या है, पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए, आरबीआई ने क्या इनिशिएटिव लिए, इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स क्या है, हम और क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें उससे अपने कंटेंट में ऐड करवाने की कोशिश करना है आपको, ओके? ठीक है? सो नाउ आई एम गिविंग यू द टॉपिक्स। सी, अब ये यहाँ पे क्या है ना, इस टेबल पे मत जाना, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स मेंशन है। आई डोंट वांट यू गाइस टू डू ईच एंड एवरी टॉपिक, आई जस्ट वांट यू गाइस टू डू द हाईलाइटेड टॉपिक्स ओनली। जो ये सारे येलो में हाईलाइटेड हैं, only try to cover these particular topics like demographic dividend, fiscal monetary policy करो तो monetary policy tools अच्छे से कर लेना, then poverty, population explosion, then urbanization, migration, artificial intelligence, cashless economy, unemployment, globalization, sustainable development goal, then financial inclusion, women empowerment, manufacturing, digital currencies, mental health, MSME startups and 5 trillion economy or develop economy by 2047. So these are the topics that I want you guys to read, और खुद से रीड ज़्यादा नहीं करना है, चैट जीपीटी को बोलना है कंटेंट बनाओ, वो 10 मिनट बना के देगा, आप अगले 20 मिनट में उसको रीड कर लेना।
अब आप कहोगे मैम इससे क्या हेल्प होगा, इससे ये हेल्प होगा एवरीवन, बिकॉज आपका इंग्लिश आता है 100 नंबर का, राइट, इंग्लिश आता है 100 नंबर का, जिसमें से 40 नंबर का आपका क्या होता है, एसे होता है। अगर आप ये वाला टॉपिक्स कवर कर लेते हो तो आपका एसे वाला टेंशन सॉर्टेड हो जाएगा, बिकॉज आपको पूरा कंटेंट पहले से पता होगा। फेज 1 के बाद आपको बस टाइपिंग प्रैक्टिस करना होगा, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईएसआई डिस्क्रिप्टिव एवरीवन। ईएसआई डिस्क्रिप्टिव में अगर वो लोग रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछते हैं तो रिपोर्ट्स में जब आपको पॉइंट सप्लीमेंट करने होते हैं और एडिशनल पॉइंट लिखना होता है, तो वो कहां से लिखेंगे आप, जब आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी होंगी, देन यू विल हैव मोर नंबर ऑफ पॉइंट्स टू राइट। ओके, सो ईएसआई ऑब्जेक्टिव हमारा 100 मार्क्स का होता है, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको 50 से 60% चीजें आपको इसी से हेल्प मिल जाएगा, राइट। सो हम कह सकते हैं कि आपके डिस्क्रिप्टिव का कम से कम 70% प्रिपरेशन हो जाएगा, राइट। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट यू गाइस टू रीड दिस पर्टिकुलर थिंग फॉर योर फेज 2, ठीक है। उसके बाद जब फेज 1 हो जाएगा, उसके बाद आई विल टेल यू, वी विल टेल यू कि अब हम और क्या क्या कर सकते हैं फेज 2 के लिए। ओके, चलो ये हो गया फेज टू नहीं कर लिया, बहुत कर लिया हमने फेज टू, इसको इतना ज्यादा टाइम नहीं देना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स दैट यू नीड टू डू ऑन अ डेली बेसिस। सो डे 1 टू डे 10 मेरे सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे एवरीवन, मेरे सारे स्टूडेंट्स 10 दिन के लिए मस्त पढ़ेंगे। क्या पढ़ाई करेंगे, वो लोग देखेंगे कि ठीक है फरवरी की सर्कुलर्स की सपना मैम की 3 वीडियोस है, आई विल वॉच दोस 3 वीडियोस। देन मार्च पीआईबी की मेरी तो बहुत सारी वीडियोस होंगी, सो मार्च पीआईबी के लिए मैं कहूंगी कि सीधा पीडीएफ से पढ़ लोगे ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद डू 15 डेज ऑफ मार्च न्यूज़पेपर सीए एंड 10 डेज ऑफ अप्रैल न्यूज़पेपर सीए एंड यू हैव टू डू बजट एज वेल। बजट की मेरी वीडियो है, आप वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो जो आपको पीडीएफ कोर्स में मिला है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो करंट अफेयर्स के लिए आपको ये सारी चीजें करनी है। अब आप कहोगे मैम इतनी सारी चीजें हैं, बट एक बात बताओ, 10 दिन का टारगेट है ये, मैंने कोई आपको एक दिन का टारगेट नहीं दिया है। these targets are for your 10 days and now see everyone you have to put extra effort, ठीक है, बिकॉज एग्जाम एकदम पास आ चुका है, सो हम बिल्कुल भी डिले नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सो फरवरी का सर्कुलर वैसे करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 वीडियो है, 3 घंटा देखोगे खत्म हो जाएगा। मार्च की पीआईबी वीडियो से देखे करना है तो वो भी कर सकते हो, नहीं तो मैं सजेस्ट करूंगी पीडीएफ से कर लो। देखो मार्च की पीआईबी भी कितनी है, देखा जाए 100-150 पेजेस है आपके मुश्किल से, राइट, 142 पेजेस आए थे, ठीक है। वो तो और उसमें इंडेक्स के ही 10-12 पेजेस होंगे, वो हटा दो, फिर मैं तो स्पेसिंग भी ज्यादा बड़ी देती हूँ, तो समझ लो कि आपका मोर और लेस आपका पीडीएफ ना 120 से 130 पेजेस के बीच में है। सो डेली बेसिस पे 10-10 पेजेस भी करोगे तो आपका आराम से हो जाएगा, राइट। देन मार्च न्यूज़पेपर सीए, मार्च न्यूज़पेपर सीए जो 15 डेज का है, सिर्फ 15 डेज का करना है, तो 15 डेज का पीडीएफ होता ही कितना है, मुश्किल से आपका 100 पेज का, राइट, 100-150 पेज का 15 डेज का वो मार्च सीए होगा आपका, तो वो कर लेंगे। देन उसके बाद 10 डेज ऑफ अप्रैल न्यूज़पेपर सीए भी करेंगे, एंड बजट छोटा सा ही डॉक्यूमेंट है, वो आपको करना ही करना है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन एवरीवन, ठीक है, बिकॉज नाउ वी एग्जाम इज वेरी नियर, राइट, इट इज नियर, सो हम यहाँ पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते किसी भी चीज को लेके, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वांट। सो क्वांट में क्या करेंगे मेरे सारे स्टूडेंट्स, दे आर गोइंग टू सॉल्व 50 क्वेश्चंस ऑफ नंबर सिस्टम, देन दे आर गोइंग टू सॉल्व 150 क्वेश्चंस ऑफ रॉन्ग नंबर सीरीज, 100 क्वेश्चंस ऑफ मिसिंग नंबर सीरीज एंड 7 DI सेट्स ऑफ IBPS SBI क्लर्क प्रीलिम्स लेवल। सो दिस टाइम आई हैव एडेड द लेवल एज वेल, सो दैट आपका जो कंफ्यूजन रहता है कि कहां से करना है कैसे करना है वो दूर हो जाए। ये जो मैंने लेवल लिखा है ना, जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब, जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब, ये आपने ये एग्जाम का नाम मेंशन करना है, देन सर्च द टॉपिक, जो टॉपिक आपको चाहिए वो टॉपिक लिख दो, एंड यूट्यूब में आपको बथेरी वीडियोस मिल जाएंगी, वहां से आपको सब कुछ मिलेगा, वहां से हमारे सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू, अब आपको होंगे मैम 50 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा नहीं हो गया, वैसे कितने क्वेश्चन हुए, 300 क्वेश्चन हुए, 300 ही तो हुए, 300 हुए, जिसमें से एवरीवन आपको 10 दिन में करना है, यानी कि डेली बेसिस पे आपको सिर्फ 30 क्वेश्चंस तो करने हैं। तो क्या हम डेली बेसिस पे क्वांट के लिए 30 क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं? वी कैन डेफिनेटली डू इट एवरीवन, ठीक है। सो नंबर्स देखने में ज्यादा बड़ा लग रहा है, बट डू नॉट फॉरगेट दैट ये 10 दिन का टारगेट है आपका। ओके, सो फॉर द नेक्स्ट 10 डेज व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना है, 50 क्वेश्चंस ऑफ नंबर सीरीज सिस्टम के सॉल्व करने हैं, 150 क्वेश्चंस ऑफ रॉन्ग नंबर सीरीज के। ज्यादा क्वेश्चन क्यों सॉल्व करा रही हूं, बिकॉज एग्जाम में ज्यादातर रॉन्ग नंबर सीरीज ही आता है, जब जो ज्यादा आता है हमें उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए ना, राइट। देन वी आर गोइंग टू सॉल्व 100 क्वेश्चंस ऑफ मिसिंग नंबर सीरीज एज वेल। सो 50 क्वेश्चंस ऑफ नंबर सिस्टम करेंगे, 150 क्वेश्चंस ऑफ रॉन्ग नंबर सीरीज करेंगे, 100 क्वेश्चंस ऑफ मिसिंग नंबर सीरीज करेंगे। ओके, एंड डेली बेसिस पे, डेली का मतलब डेली आपको 7 DI सेट करना ही करना है एवरीवन, ठीक है। और कौन से लेवल का करना है, IBPS SBI क्लर्क प्रीलिम्स लेवल DI सेट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीजनिंग। रीजनिंग में मैंने आपको सारे बताए मिसलेनियस टॉपिक्स, राइट। सो मिसलेनियस टॉपिक्स के लिए क्या करना है आपको, डेली यू हैव टू सॉल्व 10 to 12 क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी मिसलेनियस टॉपिक, यानी कि आपने सिलॉग्स उठाया तो सिलॉग्स के आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व करे, इनपुट आउटपुट निकाला तो आपने उसके 2 सेट सॉल्व कर लिए, यानी कि आपने 10 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए। देन ब्लड रिलेशन निकाला तो आपने वहां पे 2 सेट सॉल्व कर लिए, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ओके, ब्लड रिलेशन, फिर आगे हमारा इनइक्वालिटी निकाला, उसके 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, राइट। सो व्हाट यू नीड टू डू एवरीवन, फॉर रीजनिंग you need to practice daily 10 to 12 questions from every miscellaneous topic. You cannot skip even a single topic everyone. Okay,
अब उसके बाद क्या करना है, ये तो हमारा हो गया मिसलेनियस। पजल्स की बात करते हैं। सॉल्व 7 बेसिक लेवल पजल सिटिंग अरेंजमेंट्स डेली, यानी कि डेली आपको 7 पजल 7 सिटिंग अरेंजमेंट, सॉरी 7 पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट मिला के हैं। तनिष परेशान मत हो कि अलग अलग है, नहीं इतना नहीं है, सिर्फ 7 पजल सिटिंग अरेंजमेंट मिला के आपको कर लेना है, ठीक है। लेवल लिख दिया मैंने, आईबीपीएस पीयू, आईबीपीएस एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स लेवल। जस्ट सर्च इट ऑन यूट्यूब, यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। ये आप सेम इनके लिए भी कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस के लिए भी आप यही चीज कर सकते हैं। जस्ट सर्च द नेम ऑफ द एग्जाम, यू विल गेट एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ओके। देन इंग्लिश के लिए मैं जैसे बोलती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं करना है एवरीवन, जस्ट सॉल्व 6 to 7 इंग्लिश सेक्शनल मॉक टेस्ट एंड एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स लेवल के सॉल्व करेंगे। ये आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल। अब आप कहोगे मैम वहां तो हमसे 20 से 25 मिनट में 40 क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, बट मैं कहूंगी सेम बात में जैसे पहले भी बोला मैंने आपको कि देखो वहां से अगर 20 से 25 मिनट 40 क्वेश्चन करा रहे हैं तो आरबीआई आपसे सिर्फ 25 मिनट में 30 ही क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। सो एट देन एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल का मॉक दोगे, योर स्पीड विल इंप्रूव, राइट। सो डू नॉट वरी अलॉट एवरीवन, ठीक है। सो इतना हमें करना ही करना है, इंग्लिश को बिल्कुल हल्के में लेना है, ओके। चलो नाउ लेट्स मूव अहेड। अब मुझे पता है आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे, यू गाइज विल डेफिनेटली डू द थिंग्स दैट आई हैव मेंशन हियर एंड ट्रस्ट मी एवरीवन, जितना मेंशन किया है इसका अगर 80 से 90% चीजें भी आप कर लेंगे ना, देन गेम सेट है। मे बी आप इस साल सच में आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन ही जाए, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जीए अगेन। नाउ डे 11 टू डे 20 तक क्या करेंगे मेरे सारे स्टूडेंट्स, दे आर गोइंग टू डू मार्च सर्कुलर। देखो मार्च सर्कुलर का ना सपना हमने एक ही वीडियो बनाया है, सो डू इट। अप्रैल सर्कुलर का मुझे लगता है 1 से 2 वीडियो में बनेगा, ये भी सॉर्टेड हो जाएगा, अभी बना नहीं है, बन जाएगा, तब तक टेंशन मत लेना, ठीक है, तब तक आ जाएगा वीडियो। देन मार्च सर्कुलर अप्रैल सर्कुलर के वीडियो होंगी, ये हम करेंगे। देन इसके साथ साथ अप्रैल का पूरा पीआईबी करेंगे। अच्छी बात ये है कि अप्रैल में ज्यादा न्यूज नहीं है पीआईबी में, सो यू गाइज विल बी एबल टू मैनेज इट रियली वेल। देन क्या करेंगे, हमने पिछले वाले उसमें 10 डेज ऑफ अप्रैल न्यूज़पेपर सीए किया था, तो यहाँ पे हम न्यूज़पेपर सीए को रिवाइज करेंगे। अब हमने जो पढ़ा था उसको रिवाइज कौन करेगा एवरीवन, उसको रिवाइज कौन करेगा। नाउ यू हैव टू रिवाइज द बजट दैट यू हैव डन इन द प्रीवियस 10 days, then you have to revise the 15 days of March CA as well, then you have to revise 15 days of March CA as well, okay everyone। so ये चीजें हम जीए से रिलेटेड करेंगे, बिकॉज रिवीजन शुड बी योर प्रायोरिटी। जब भी पढ़ रहे हैं आगे तब नहीं पढ़ना चाहिए जब तक आपने रिवाइज नहीं किया है तो, ओके। देन क्वांट में क्या करेंगे, 150 क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 150 क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू हैव टू सॉल्व। देन यू हैव टू प्रैक्टिस 100 क्वेश्चंस ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर, 100 क्वेश्चंस ऑफ टाइम एंड वर्क। नाउ अगेन दिस वाज माय फेवरेट टॉपिक, दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन दीज टॉपिक्स। अगर आपका फेवरेट टॉपिक कुछ और है तो आप वहां से 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी आपको देखने में ज्यादा लग रहा होगा, बट अल्टीमेटली डेली 350 क्वेश्चंस मैं बोल रही हूँ, तो डेली आपको सिर्फ 35 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ओनली 35 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व, एंड एटलीस्ट इतना तो हमें करना ही है एग्जाम क्रैक करना है तो। बिकॉज हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिसिंग, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट कि भैया एग्जाम क्लियर करना है मुझे। सो एग्जाम क्लियर करने के लिए बताओ मैम क्या करना है, तो वो ये करना है, ओके। देन आपको क्या करना है एवरीवन, अब आपको फिर क्या करना है, डेली 7 DI सेट सॉल्व करना है। अगेन आई हैव मेंशन द लेवल, सर्च इट ऑन यूट्यूब, यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आईबीपीएस एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल, इससे पहले हमने क्लर्क के प्रीलिम्स लेवल कराया था, यहाँ पे हम पीओ लेवल के प्रीलिम्स लेवल के साथ साथ डीआई सेट सॉल्व करेंगे डेली। डेली का मतलब क्या हो गया कि अगले 10 दिनों में आप 70 डीआई सेट सॉल्व कर रहे होंगे, ओके। देखो स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, ट्रस्ट मी बहुत टाइम लगता है, मुझे पता है, मैं उस दौर से निकली हूँ, बट विद टाइम क्या होता है ना, आप प्रो हो जाओगे। 10 दिन, जो पहले 10 दिन होंगे वो ज्यादा डिफिकल्ट लगेंगे, आने वाले 10 दिन थोड़े से कम डिफिकल्ट लगेंगे, आने वाले टाइम में आप प्रो हो जाओगे, ठीक है। सो देन रीजनिंग में क्या करना है, सॉल्व डेली 15 क्वेश्चंस, बिकॉज जब आपने पहले किए हैं 10 से 12 क्वेश्चन, सो अब आपके लिए इजी होगा कि यू कैन सॉल्व इजीली 15 क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी मिसलेनियस टॉपिक, ठीक है। सो सर्च इट ऑन यूट्यूब, यू विल गेट एन नंबर ऑफ क्वेश्चन। देन उसके बाद सॉल्व 7 मॉडरेट लेवल पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स डेली। सॉल्व 7 मॉडरेट लेवल पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट डेली, मतलब डेली करना है आप लोगों को। कौन से लेवल का करना है, आईबीपीएस एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल, आईबीपीएस एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल के डेली आपको 7 पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करना है, ठीक है। देन इंग्लिश के क्या करेंगे, सेम 6 to 7 सेक्शन मॉक टेस्ट देंगे एंड पीओ के प्रीलिम्स लेवल का देंगे। एंड अगर आपको कभी भी लगे कि इंग्लिश में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो रेपिटेटिवली आप देख रहे हैं कि वो आप हमेशा गलत कर रहे हैं, सो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ये होगा। सपोज आपको पजल पैराजम्बल अच्छे से नहीं बन रहा है, ठीक है। सो आप क्या करोगे, आपने देखा कि यार मैं ना पिछले 10 मॉक में देख रही हूँ कि मेरे से सिर्फ पैराजम्बल ही गलत हो रहा है, सो व्हाट यू नीड टू डू एवरीवन, जो एक्स्ट्रा दिन जो आपके पास अगर दिन में आधा घंटा भी मिलता है ना, या आप लंच कर रहे हो डिनर कर रहे हो, तो एक पैराजम्बल का यूट्यूब पे कोई वीडियो निकालो, यूट्यूब पे जस्ट सर्च इट फॉर बैंक एग्जाम पैराजम्बल, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, जो वीडियो मन करे ओपन करना एंड देन वहां पे वो वीडियो देखो, तो कुछ नहीं करना है, बस देखते रहना है। आधे घंटे डेली भी देखोगे ना 5 दिन, 6ठे दिन से अपना दिमाग खुद ही काम करने लग जाएगा कि अच्छा कैसे बनता है पैराजम्बल, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे तो ब्रेन को ट्रेन करना होता है कि
आप कर तो नहीं रहे हो, बट उसको आप सिखा रहे हो। आपने क्या किया, वीडियो लगाया, कॉन्शियसली यू आर जस्ट लिसनिंग, यू आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट द टीचर इज सेइंग, ठीक है। ऐसे करोगे तो आपको हेल्प मिलेगा डेफिनेटली। ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं होता, ऐसे पजल्स में भी होता है, सिटिंग अरेंजमेंट में भी होता है, एंड इवन दूसरे चैप्टर्स में भी होता है, ठीक है। चलो यहाँ तक देखो, अभी तक आपने जो जितना पढ़ा है ना, अगर आपने इतना बहुत 80-90% कर लिया, देन यू आर गुड टू गो फॉर दिस एग्जाम। 21 से डे 30 तक हम क्या करेंगे, अभी हमने फरवरी का सर्कुलर पढ़ा, मार्च का सर्कुलर पढ़ा, अप्रैल का सर्कुलर पढ़ा, रिवाइज किया नहीं किया। नाउ यू हैव टू रिवाइज फरवरी, मार्च एंड अप्रैल सर्कुलर एवरीवन। नाउ यू हैव टू रिवाइज फरवरी, मार्च एंड अप्रैल सर्कुलर, ओके। देन उसके बाद में सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू रिवाइज मार्च एंड अप्रैल पीआईबी, बिकॉज एट दैट आपने मार्च एंड अप्रैल पीआईबी पढ़ तो लिया था बट रिवाइज नहीं किया था, तो रिवाइज कब करेंगे, अभी करेंगे। अप्रैल करंट अफेयर्स पढ़ा था बट रिवाइज नहीं किया था, कब करेंगे, नाउ यू आर गोइंग टू रिवाइज इट नाउ, राइट। फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि रिवीजन ज्यादा है तो इसलिए मैंने नंबर ऑफ डेज कम करा है। उसमें क्या करना है, डू 15 डेज ऑफ मे पीआईबी एंड न्यूज़पेपर सीए, दैट्स इट। डू 15 डेज ऑफ मे पीआईबी एंड न्यूज़पेपर सीए ऑफ मे मंथ ओनली, ठीक है, मे मंथ है ये भी। ये नंबर ऑफ डेज इसलिए कम रखें ताकि आपको रिवीजन के लिए अच्छे से टाइम मिल सके, ठीक है। देन क्वांट में आते हैं, क्वांट में क्या करेंगे हम लोग, क्वांट में यू हैव टू प्रैक्टिस 75 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम नंबर सीरीज, जिसमें मैं चाहती हूँ 75 में से 50 क्वेश्चंस आप रॉन्ग नंबर सीरीज के करेंगे एंड 25 क्वेश्चन आप मिसिंग के करेंगे, ठीक है। देन 75 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्वाड्रेटिक के, 75 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे पार्टनरशिप के, एंड 75 प्रैक्टिस करेंगे टाइम एंड वर्क के, ठीक है। सो दिस शुड बी योर टारगेट कि हर चैप्टर से आपके 75 क्वेश्चंस होने ही चाहिए, okay। then everyone, for with respect to DI, again solve 7 DI sets daily। इसका क्या है, IBPS SBI क्लर्क मेंस लेवल। सो वैसे देखा जाए आरबीआई का एग्जाम इट इज मोर अबाउट एसबीआई क्लरिकल मेंस लेवल ओनली, ठीक है। अगर ये वाले डीआई सेट सॉल्व करना थोड़ा सा भारी लगेगा एवरीवन, बट आई जस्ट वांट कि थोड़ा सा हम डिफिकल्ट के लिए भी प्रिपेयर हुए। पहले जो हमने किया वो हमें इजी के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर देगा, बट यहाँ पे क्या होगा, हम एक एक्स्ट्रा इनिशिएटिव ले रहे हैं ताकि अगर एग्जाम डिफिकल्ट आ जाए तो आई शुड बी एबल टू मैनेज इट, ओके। सो हियर IBPS SBI क्लरिकल मेंस लेवल की आपको 7 DI सेट्स करने हैं एंड 7 पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट भी करने हैं सेम मेंस लेवल के, दैट इज IBPS SBI क्लर्क मेंस, ओके। देन उसके बाद क्या करेंगे, अभी तो हम 15 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हर चैप्टर से, अब हम तो प्रो मैक्स हो चुके हैं ना। सब हम क्या करेंगे, जब हम प्रो मैक्स हो जाते हैं, सो नाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व 20 क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी मिसलेनियस टॉपिक एवरीवन, ठीक है। 8 टॉपिक है, 20-20 क्वेश्चन करोगे तो मोर और लेस आपको सिर्फ 160 क्वेश्चन डेली करने होंगे, एंड इतना आप कर सकते हो। अब आप पूछोगे इतने सारे क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, सब यूट्यूब पे मिलता है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। आई यूज्ड टू सर्च इट ऑन यूट्यूब, आई यूज्ड टू गेट एवरीथिंग ऑन द यूट्यूब, यू विल गेट इट, ठीक है। एंड सर्च ये मत करो कि आरबीआई के लिए चाहिए, नहीं, सर्च the name of these exams, you will get then a number of questions, okay। then for English the same thing, but यहाँ पे एक चीज अलग होगी अब की बारी कि इंग्लिश में, क्योंकि मेरे बच्चे सारे जो मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े से एक्सपर्ट हो चुके होंगे अब तक, है ना। तो जब सारे स्टूडेंट्स एक्सपर्ट हो चुके होंगे इंग्लिश में, क्योंकि उन्होंने 12 से 14 मॉक दे चुके होंगे, अब वो प्रो हो चुके हैं, अब वो क्या करेंगे, नाउ दे आर गोइंग टू गिव IBPS PO मेंस लेवल इंग्लिश सेक्शनल मॉक टेस्ट। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट अब देखो वैसे इतना जरूरी नहीं है ये वाला लेवल तक जाने का, बट स्टिल आई वांट कि यार थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेते डिफिकल्ट कैसा होता है, ताकि जब एग्जाम में आए तो हम पैनिक ना करें। वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड एवरीवन। आई वांट बेसिक से लेके एडवांस तक आपको सब आना चाहिए, एग्जाम कैसा भी आए आप फोड़ फड़ के आओगे अच्छे से, सीधी सी बात है। यू मस्ट बी स्कोरिंग रियली रियली गुड मार्क्स, मतलब आप वरिड ना रहो कि मेरा फेज 1 नहीं होगा, ओके। सो यू हैव टू सॉल्व डेली, यू हैव टू सॉल्व डेली, नहीं करना है सॉरी, पूरे 10 दिनों में 6 से 7 इंग्लिश के सेक्शनल मॉक टेस्ट निकाल लेने हैं। और जो स्टार्टिंग में बताया था थीम प्रिपेयर करने, वो बीच बीच में जहां टाइम मिले, रात को सोते टाइम आधे घंटे का निकालो, वो वहां तब करना है, ठीक है, ओके। नाउ अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, बट अभी तक हमने फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, राइट। एंड आई थिंक इस टाइम तक आते थे 1 से 10 जून की बात है ये, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, तब तक मे सर्कुलर्स की वीडियो आ गई होगी, टू कवर मे सर्कुलर्स, ठीक है। देन कवर 15 डेज ऑफ मे पीआईबी एंड न्यूज़पेपर सीए, मे वाला ही, क्योंकि हमने पहले के दिनों में सिर्फ 15-15 दिन का किया था, राइट। सो नाउ यू हैव टू कंप्लीट इट। देन रिवाइज मे पीआईबी सर्कुलर्स एंड न्यूज़पेपर सीए, जो पढ़ोगे उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, बिकॉज एट देन रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन, राइट। एंड इस टाइम तक जून से रिलेटेड मार्केट में जो भी अवेलेबल होगा न्यूज़पेपर सीए, पीआईबी और सर्कुलर, जो भी मार्केट में अवेलेबल होगा विद रिस्पेक्ट टू पीआईबी, सर्कुलर्स, न्यूज़पेपर सीए, यू हैव टू कवर एवरीथिंग, ठीक है। बिकॉज जून का हमें नहीं छोड़ के जा रहा है, बिकॉज ऐसे होता है एग्जाम जिस दिन होता है उससे 4 से 5 दिन का पहले का भी पूछ लेते हैं, ठीक है। वो इजी पूछते हैं तो इसलिए मैं कहूंगी कर लेना, ठीक है। बट यस योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू कंप्लीट दिस थिंग, ठीक है। देन उसके बाद गिव 5 to 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड एनालाइज इट एवरीवन, बिकॉज अब क्या है, यहाँ पे 10 दिन मिले होंगे, 5 से 6 हर ऑल्टरनेटिव डेज पे एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है ना। फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने का ऑब्जेक्टिव क्या है, पहली बात तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट में कुछ भी नंबर है चाहे 0 क्यों नहीं आ रहे होंगे, हमें बिल्कुल टेंशन लेना है, बिकॉज मेरा मानना है मॉक्स कैन नेवर जस्टिफाइड, मॉक्स कैन नेवर टेल यू कि वेदर यू आर गोइंग टू क्लियर द एग्जाम और नॉट,
सो डू नॉट पे योर अटेंशन टू द मार्क्स ऑफ द मॉक्स, ठीक है। ज़्यादा आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होंगे, बस अप्रिशिएट योर सेल्फ, बट हाँ हमें थोड़ा ग्राउंडेड रहना है, ठीक है। ग्राउंडेड रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। ग्राउंडेड रहना है, शांत रहना है, शांत दिमाग से बस सोचना होगा, ठीक है। अच्छे आ रहे हैं तो अप्रिशिएट योर सेल्फ, कम आ रहे हैं तो बिल्कुल परेशान नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि यार मॉक्स ना बनाते ही कभी कभी लोग ऐसे हैं ताकि स्टूडेंट परेशान हो। सो उस पर हमें ध्यान नहीं देना, उसको हमें बिल्कुल इग्नोर कर देना है, ठीक है। सो हम उसको अच्छे से इग्नोर करेंगे। सो अब हम करेंगे या फिर मॉक्स देने के बाद, मॉक्स दिया आपने, ठीक है, सपोज आपने आज एक मॉक दिया, देन व्हाट यू नीड टू डू, आप पूरा एनालाइज करोगे कि आप अपने कौन से क्वेश्चन जो आपके सही हुए थे, क्या आपने तुक्का मारा था या नॉलेज था, जो क्वेश्चन गलत हुए वो क्यों हुए, क्या सिली मिस्टेक की वजह से हुए, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से हुए, क्या मैंने ज्यादा तुक्का मार दिया था। नाउ आफ्टर गिविंग मॉक्स यू विल अंडरस्टैंड कि ठीक है आपके तुक्के लगते हैं या नहीं लगते हैं, कौन से क्वेश्चन आप ज्यादा गलत करते हैं, कौन सा चैप्टर के क्वेश्चन ज्यादा गलत कर रहे हैं। जो आपने आइडेंटिफाई किया पहले दिन आपने एनालाइज किया, एंड उसके बाद उसमें क्या, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम होगा, पहले दिन आपने मॉक दिया, एनालाइज किया, देन उसके जितने बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो आप सारे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट डे जो जो टॉपिक आपने आइडेंटिफाई करे कि ठीक है मुझसे नंबर 6 के क्वेश्चन नहीं बने, ठीक है, नेक्स्ट डे यू जस्ट हैव टू सॉल्व 50 टू 60 क्वेश्चन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक ओनली। जो जो टॉपिक में गलती करी है उसके क्वेश्चन उठाओ और मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। दिस वे यू नीड टू डू दिस वे यू नीड टू solve all the full length mock test. Now this will help you to maximize your score, ठीक है। इससे आप जैसे जैसे आप 5th और 6th मॉक पे आओगे ना, यू विल अंडरस्टैंड कि ओके इन दिस वे आई नीड टू अटेम्प्ट द पेपर, जिससे मेरे को मैं अपने मार्क को मैक्सिमाइज कर पाऊंगा। ओके, विद द हेल्प ऑफ दीज मॉक्स ट्राई टू थिंक कि ठीक है क्या मेरी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, कहाँ गड़बड़ करता हूँ कहाँ नहीं करता हूँ। थिंक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, ठीक है, कि अच्छा मैं पहले अगर मिसलेनियस क्वेश्चंस करता हूँ बाद में पजल करता हूँ तो मेरे नंबर ज्यादा आते हैं। सो यू नीड टू डेवलप दैट स्ट्रैटेजी एवरीवन। ओके, तो स्ट्रैटेजी ऐसे बैठे बैठे बिना प्रैक्टिस करे नहीं बनती है, यू हैव टू सॉल्व मॉक टेस्ट, ठीक है। फिर मॉक टेस्ट में जो जो क्वेश्चंस रह गए होंगे, जो आपने प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। ये हो गया, ये दिस इज इट, ठीक है। इसके बाद देखो आपके पास 2-4 दिन सब बचेंगे, उसकी टेंशन नहीं है, बट मैंने सोचा कि 40 दिन लेके चलते हैं, बिकॉज लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें एकदम प्लान के हिसाब से हो, तो दैट्स वाई मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा दिन छोड़ दिया आपके लिए। फिर वो आप पे होगा कि आपको जून का करंट अफेयर्स करना होगा, जो बच गया होगा उसका रिवीजन करना होगा, और मॉक टेस्ट फिर लास्ट के दिनों में नहीं देना होगा एवरीवन, ठीक है। एंड आई जस्ट वांट टू से वन थिंग टू यू, and I just want one thing from you all everyone, that on a daily basis just say this thing, that जो हो रहा है सब बहुत अच्छा हो रहा है। क्या कहेंगे आप लोग? आप यही बोलेंगे that whatever is happening everything is happening for me only, whatever is happening it is happening for my highest good only. Okay, just trust this thing everyone, and yes, always say I will crack it, I will crack it, I will become RBI Grade B officer in 2026 only, ठीक है। I just want your message कि मैम देखो आपने बोला था और हमने वैसे ही किया, एंड फाइनली in 2026 I have become the RBI Grade B officer. This should be your attitude for the next 40 to 60 days everyone, because फेस टू तक हमें यही एटीट्यूड रखना है, हमें यही रखना है कि ठीक है अगर मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, मेरा ही एग्जाम होगा, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर सब बहुत अच्छा होगा, जस्ट ट्रस्ट दिस थिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प यू, काइंडली फॉलो इट, बिकॉज देखने से कोई फायदा नहीं है एवरीवन अगर हम इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो। ओके, इम्प्लीमेंटेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे एंड सब बहुत अच्छा होगा, एंड जस्ट से दिस थिंग, I am going to become RBI Grade B officer in 2026 only. Okay, और वैसे एवरीवन ध्यान रखेंगे अपना सब।